आज हम जम्मू एंड कश्मीर के कल्चर और हेरिटेज को डिटेल में समझेंगे। The culture of Jammu and Kashmir is a multifaceted and dynamic expression of life, shaped by Kashmiri Shaivism, Sufi Islam, and rich Dogra traditions. मतलब जम्मू और कश्मीर की जो सकाफत है वो एक नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ों का मिश्रण है। इस पर कश्मीरी शाइविज़म, सूफी इस्लाम और डोगरा रिवायातों का गहरा असर है। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम इन हिस्सों में बात करेंगे। पहले कल्चर और हेरिटेज की तारीफ, फिर J&K के अलग अलग इलाकों के कल्चर, उसके बाद वहाँ की ज़बान और अदब, फिर लोक संगीत की रिवायतें, अगला थिएटर और दीगर परफॉर्मेंस आर्ट्स, और आखिर में वहाँ की तामीरात की विरासत। चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। कल्चर और हेरिटेज को डिफाइन करते हैं। Culture. It refers to the multifaceted and dynamic expression of a people's way of life. मतलब कल्चर यानी सकाफत किसी भी कौम के जीने के तरीके का एक पेचीदा और हमेशा बदलता हुआ इजहार है। Shared beliefs and values, religious philosophies, spiritual practices, moral codes and social norms. मतलब इसमें लोगों के सांझे अकीदे, दीनी फ़लसफ़े और समाजी उसूल शामिल हैं। Languages and literature, languages spoken and the rich literary traditions. मतलब इसके अंदर बोली जाने वाली ज़ुबानें और उनकी अदबी रिवायतें आती हैं। Performing arts, music, dance and folk theatre forms. मतलब इसमें संगीत, रक्स और लोक थिएटर जैसी चीज़ें शामिल हैं। Visual arts and crafts, exquisite handicrafts, traditional painting styles and architectural aesthetics. मतलब उम्दा दस्तकारी, रिवायती मुसव्वरी और तामीरी खूबसूरती भी इसका हिस्सा है। Customs and traditions, rituals associated with birth, marriage, death, festivals, daily life and social interactions. मतलब पैदाइश, शादी, मौत और त्योहारों से जुड़ी रस्में भी कल्चर में आती हैं। Cuisine, distinct culinary practices and traditional foods. मतलब वहाँ के खास खाने और पकाने के तरीके। Dress and adornments, traditional attire and ornamentation. मतलब रिवायती लिबास और ज़ेबो ज़ीनत। Social structures, family systems, community organizations and traditional governance. मतलब ख़ानदानी निज़ाम, बिरादरी की तंजीमें और रिवायती इंतज़ामिया। It is both tangible and intangible. मतलब culture मादी भी है जैसे दस्तकारी और गैर मादी भी जैसे अकीदे और संगीत। Heritage. In J&K, it signifies the legacy of physical artifacts, intangible attributes, and natural landscapes inherited from past generations, maintained in the present. मतलब J&K के लिहाज से हेरिटेज वो विरासत है जिसमें गुज़री नस्लों से मिली हुई मादी चीज़ें, गैर मादी खुसूसियात और कुदरती मनाजिर शामिल हैं। Tangible heritage, monuments, ancient temples, mosques, shrines, forts, palaces, monasteries, historical structures. मतलब इसमें कदीम मंदिर, मस्जिदें और किले जैसी इमारतें आती हैं। Archaeological sites, prehistoric settlements, ancient Buddhist sites, medieval ruins. मतलब बुर्ज़-होम जैसी कदीम तरीन बस्तियां और दीगर आसार कदीमा। Artifacts, manuscripts, sculptures, paintings, coins, tools, textiles and objects housed in museums. मतलब इसमें मुसव्वदे, मुजस्समे, सिक्के और ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो म्यूजियम्स में रखी हैं। Intangible heritage, oral traditions and expressions, folklore, epic poems, proverbs, traditional storytelling. मतलब इसमें लोक कथाएं, नज़में और कहावत शामिल हैं। Performing arts, traditional music, dance forms, folk theatre. मतलब रिवायती संगीत, रक्स और भंड पातर जैसा theatre. Social practices, rituals and festive events. Unique customs, ceremonies and festivals. मतलब अनोखी रस्में, तकरीबात और त्यौहार। Traditional knowledge and practices. Traditional medicine, ecological wisdom, agricultural practices. मतलब रिवायती तिब, माहौलियाती इल्म और खेती बाड़ी के तरीके। Traditional craftsmanship. Handicrafts like pashmina weaving, wood carving, paper mache. मतलब इसमें पश्मीना बुनाई और लकड़ी की नक्काशी जैसी दस्तकारी आती है। Natural heritage includes unique geological formations, sacred groves and culturally significant landscapes. मतलब कुदरती विरासत में अनोखी ज़मीनी बनावटें, मुक़द्दस बाग और सकाफ़ती अहमियत वाले इलाके आते हैं। अब हम J&K के अलग अलग इलाकों की सकाफत पर नज़र डालते हैं। ये नक्शा जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद मुख्तलिफ नस्ली और मजहबी कम्युनिटीज़ को दिखाता है। हर कम्युनिटी इस खिते की सकाफत को और अमीर बनाती है। कश्मीर वैली,
यहाँ के प्राइमरी इन्फ्लुएंसेस कश्मीरी शाइविज़्म, सूफी इस्लाम और फ़ारसी सकाफ़त हैं। और यहाँ की ख़ास पहचान है नफीस फ़न, वज़वान खाना, कश्मीरी ज़बान और पैरेन। जम्मू रीजन, यहाँ डोगरा सकाफ़ती पहचान पंजाब और हिमाचल प्रदेश का असर है। यहाँ की खुसूसियत जंगी रिवायतें, भाड़क और गैतरू संगीत, कुद नाच और डोगरी ज़बान है। गुजर्स एंड बकरवाल्स, इनकी बुनियाद खाना बदोश चरवाहों की रिवायतें हैं। इनकी पहचान गोजरी ज़बान, रंगीन पोशाक, अलग रस्में और मजबूत ज़ुबानी रिवायतें हैं। अब अगला हिस्सा, ज़बान और अदब यानी लैंग्वेज एंड लिटरेरी लैंडस्केप। ये नक्शा जम्मू और कश्मीर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मादरी ज़बानों की तकसीम को दिखाता है, जो इस खित्ते की ज़ुबानी रंगारंगी को ज़ाहिर करता है। इस खित्ते में कई अलग ज़बानें हैं, हर एक की अपनी आवाज़, ग्रामा और अदबी रिवायत है। यहाँ कई बोलियाँ और उपबोलियाँ मौजूद हैं, जो अक्सर एक वादी से दूसरी वादी में बदल जाती हैं। कश्मीर वैली में ज़्यादातर कश्मीरी बोली जाती है। जम्मू रीजन में ज़्यादा रंगारंगी है, जहाँ डोगरी के साथ साथ गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी और हिंदी भी बोली जाती है। पीर पंजाल रेंज और चिनाब वैली में पुगोली, सराजी, कश्तावारी और भैदरवाई जैसी ज़बानें बोली जाती हैं। जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020 के मुताबिक अब 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये 5 ज़बानें हैं: कश्मीरी यानी कोशुर, डोगरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। कश्मीरी ज़बान को लिखने के लिए पहले कदीम शारदा स्क्रिप्ट इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ज़्यादातर पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीरी लैंग्वेज, ये ज़बान इंडो आर्यन फैमिली के दार्दिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। इसका बुनियादी वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। इसकी बड़ी बोलियों में कश्तवारी, पोगुली, सिराजी और रंबानी शामिल हैं। श्रीनगर के आसपास बोली जाने वाली स्टैंडर्ड कश्मीरी अदाबी कश्मीरी की बुनियाद है। इसे 1950 में हिंदुस्तानी आइन के 8th शेड्यूल में शामिल किया गया था। पहला फॉर्म है वाग। इसकी बुनियाद संस्कृत लफ्ज़ वक है। ये 4 लाइन के छोटे रूहानी दोहे होते हैं, जिनका मरकज़ शैविज़्म है। इसकी सबसे अहम शख्सियात लाल दिद हैं। दूसरा फॉर्म है श्रुक। इसकी बुनियाद संस्कृत लफ्ज़ श्लोका है। ये ऋषि और सूफी रिवायत से जुड़े अरफाना आशार हैं, जिनका मरकज़ भाईचारा और इखलाकियात है। इसकी सबसे अहम शख्सियत शेख नूरुद्दीन वली हैं। अब चलिए फोक म्यूजिक की रवायतों पर बात करते हैं। यह तस्वीर चक्री की है, जो कश्मीरी लोक संगीत की एक बहुत मशहूर किस्म है। चाकरी म्यूजिक, ये रिवायती कश्मीरी लोक संगीत की सबसे मशहूर किस्मों में से एक है। यह बुनियादी तौर पर एक सवाल जवाब वाली ग्रुप सिंगिंग है। इसे एक ग्रुप परफॉर्म करता है, जिसमें एक लीड सिंगर और एक कोरस होता है। इसके मौज़ूआत में लोक कहानियाँ, इश्क की दास्तानें और समाजी मसले शामिल हैं। इसके साज़ों में हारमोनियम, रुबाब, सरांगी और तुम्बक नार शामिल हैं। हे वन वन की सकाफती परफॉर्मेंस है, जो कश्मीरी पंडितों की रिवायती ग्रुप सिंगिंग है। रॉन वन म्यूजिक, लफ्ज़ वन वन का मतलब चौरस होता है। ये एक कपेला सिंगिंग है, यानी बिना साज़ों के गाई जाती है। इसे औरतों के ग्रुप गाते हैं, खासतौर पर शादियों और त्योहारों पर। इसके बोल रूहानी और मुबारक होते हैं, जिनमें अक्सर देवी देवताओं का जिक्र होता है। हफीज़ा नागमा is the female branch of the classical Sufi music tradition सूफियाना कलाम। मतलब हफीज़ा नागमा को सूफियाना कलाम, जो एक क्लासिकल सूफी म्यूजिक है, उसकी ज़नानी शाख माना जाता है। हाफिज़ा नगमा की कहानी 1920 से पहले इसे हाफिज़ा रक्कासियाएँ शादियों, पैदाइश और फसल की खुशी में परफॉर्म करती थीं। 1920 इस पर महाराजा प्रताप सिंह ने पाबंदी लगा दी, क्योंकि इसका ताल्लुक तवाइफी कल्चर से समझा जाता था। पाबंदी के बाद एक नया फॉर्म बच्चा नगमा उभरा इस कमी को पूरा करने के लिए। निंदबेत इज अ लेबर सॉन्ग संग बाय फार्मर्स ड्यूरिंग द वीडिंग ऑफ क्रॉप्स। मतलब ये एक मेहनत का गीत है, जिसे किसान फसलों से घास फूस निकालते वक्त गाते हैं। अब अगला सेक्शन, थिएटर एंड परफॉर्मेंस आर्ट्स। भंड पाथर, ये कश्मीर का एक रिवायती लोक थिएटर स्टाइल है। इसमें अदाकारी, रक्स और संगीत तीनों शामिल हैं। ये तंज़ो मज़ा का इस्तेमाल करके समाजी और सियासी मसलों पर तबसरा करता है। इसे 10 से 15 फनकारों का ग्रुप रिवायती अंदाज में परफॉर्म करता है। ज़बान बुनियादी तौर पर कश्मीरी होती है, जिसमें दूसरी ज़बानों की मिलावट हुक्मरानों का मजाक उड़ाने के लिए की जाती है। भांड पाथर की किस्में। वट्टाल पाथर, ये मूचियों या सफाई कर्मचारियों की जिंदगी के गिर्द घूमता है। गोसाई पाथर, ये जाहिदों या साधियों के बारे में होता है। अंग्रेज़ पाथर, ये कॉलोनियल दौर के बरतानवी अफसरों पर एक तंज है। और आखिरी सेक्शन, लेगेसी इन आर्किटेक्चर, यानी
तामीरात की विरासत। खानकाह-ए-मूला ये श्रीनगर की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है जो दरियाए झेलम के किनारे वाक़ है। असल में 1395 में बनाई गई थी और कई बार इसकी तामीरें न हुई। ये मिर्ज़ सैयद अली हमदानी यानी शाह हमदान के दौरे की याद में है। ये कश्मीरी लकड़ी के फ़न तामीर की एक खूबसूरत मिसाल है जिसमें पापीशे माचे का नफीस काम है। Ali Masjid, built by Sultan Hassan Shah in 1471, is one of the largest mosques in Srinagar. मतलब आली मस्जिद को सुल्तान हसन शाह ने 1471 में बनवाया था और यह श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिदों में